Hello everyone, good morning. I hope you are preparing well for your IPMAT 2024 exam. Today's topic is IPMAT important topics for higher mathematics. So in this video, we'll be discussing what is higher mathematics, what is the syllabus, how many questions are asked in the exam, and in which exam out of IPMAT, Indore, Rohtak, JIPMAT, in which exam this is going to be asked. Okay, a lot of students were requesting me to make a video on this. So let's go ahead. We'll see in which exam it is asked, how many questions are asked, and what are the important topics. So before we get into the important topics, let me just tell you what exactly higher mathematics is. It is nothing but some topics of class 11 mathematics, core or applied mathematics, and some topics of class 12 mathematics. Okay, it could be core or applied mathematics. These topics are asked in IPMAT Indore exam. So this is higher mathematics. The rest of the questions in quantity aptitude are from class 6 to 10. Okay, so not all the topics from class 11-12 mathematics are asked in IPMAT Indore, so it's not a case that you have to study the complete class 11-12 mathematics book. Okay, not all the topics. There are some topics which are frequently asked. We'll focus upon them only. Second, class 11-12 mathematics or higher mathematics is only asked in IPMAT Indore. It will not be asked in IPMAT Rohtak and JIPMAT. So if you are specifically preparing for IPMAT Rohtak and JIPMAT, there is no need to study class 11-12 mathematics or higher mathematics at all. Okay, if you are targeting Indore, then you have to study it. But how many questions are asked? What will non-math students do in such a case? Okay, so I have written over here maximum 12 to 13 questions are asked and will be distributed across quant short answer and quant MCQ sections. Since I've already told you, higher mathematics will only be there in IPMAT Indore. In IPMAT Indore, we have two quant sections, short answer and MCQ. Right. So these higher mathematics questions, maximum 12 to 13 questions are asked. Okay, not more than that, so that non-math students can also solve the paper. Why? Because they'll be attempting the class 6 to 10 mathematics questions. Okay, so maximum 12 to 13 questions will be asked, and it's not a case that all of these questions will be in a particular section. Okay, they will be distributed across these two sections, and how many questions are there in these sections we'll discuss ahead. Okay, so let's go ahead and we'll discuss the important topics and किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं. सो हियर वी हैव अ क्लियर बाइफर्केशन कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसका मैंने आइडिया यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, फॉर हायर मैथमेटिक्स ये सिर्फ IPMAT इंदौर में आता है. मैं अगेन बता रहा हूँ आपको. ठीक है, सो आपको पता है IPMAT इंदौर में दो सेक्शंस होते हैं क्वांट के, क्वांट शॉर्ट आंसर, क्वांट MCQ. राइट, क्वेश्चंस ऑफ हायर मैथमेटिक्स इस सेक्शन में लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस मैक्सिमम रहेंगे आपके हायर मैथ्स के. ये आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस 2-3 ईयर पेपर्स जो हैं उनको उठा करके देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा. एंड मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन आपके सेकंड MCQ वाले सेक्शन में होंगे. अब टोटल क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में कितने होते हैं? 15. इसमें से सिर्फ 5 to 6 जो होंगे ये क्लास 11-12 के हो सकते हैं. ठीक है, एंड ईजी भी होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि सबके सब डिफिकल्ट होंगे. देयर विल बी ईजी मॉडरेट क्वेश्चंस. एंड क्वांट MCQ सेक्शन में टोटल होते हैं 30 क्वेश्चन. इसमें से मैक्सिमम 6 to 7 क्वेश्चन जो होंगे ये हायर मैथमेटिक्स के होंगे. ओके, टाइम लिमिट की बात कर लेते हैं. यू नो दैट क्वांट शॉर्ट आंसर की जो टाइम लिमिट है वो 40 मिनट्स है, एंड MCQ की जो टाइम लिमिट है वो भी 40 मिनट्स है. वर्बल मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया बिकॉज दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्जेक्ट. राइट, वी आर डिस्कसिंग IPMAT हायर मैथ्स ओवर हियर. मार्किंग स्कीम आपको पता है, शॉर्ट आंसर सेक्शन में +4 0, यानी कि अगर सही करते हो तो +4, गलत करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है शॉर्ट आंसर सेक्शन में IPMAT इंदौर में. ओके, एंड MCQ सेक्शन में तो +4 -1, यानी कि +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर. ओके, एंड फाइनली आई हैव ऑल्सो मेंशन द कट ऑफ, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है. नाउ यू नो दैट क्वांट शॉर्ट आंसर हैज हाउ मेनी क्वेश्चंस? 15 क्वेश्चंस. सो इट इज ऑफ 60 मार्क्स. 60 में से कितनी कट ऑफ जाती है? 12 to 20 के बीच में. ईयर 2023 में IPMAT इंदौर 2023 में जो कट ऑफ गई है शॉर्ट आंसर सेक्शन की वो 12 मार्क्स गई है. कभी कभी 20-24 भी जाती है. ओके, सो सेफ है कि आप इतना लाओ या इससे ज्यादा ही लेकर आओ. इनफैक्ट क्यों आप कम लेकर आओगे? राइट, इफ यू कैन सॉल्व मोर. ओके, अपना अटेम्प्ट हाई रखिएगा. नेक्स्ट है हमारा MCQ सेक्शन. 30 क्वेश्चन इसमें होते हैं. 13 to 4 इज 120 मार्क्स का सेक्शन है, एंड इसकी कट ऑफ रेंज करती है 40s में. ओके, मैंने 50 का अपर लिमिट लिखा हुआ है कि क्या पता बिकॉज एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं तो ऊपर जा सकती है कट ऑफ, बट यूजुअली जो रहती है 40s की रेंज में रहती है. 40, 45, 48 समथिंग लाइक दैट. ओके, इस साल 2023 में कट ऑफ थी 39 मार्क्स और इस शॉर्ट आंसर सेक्शन में कट ऑफ थी 12 मार्क्स. ओके, ये ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं. ठीक है, एंड ये मैंने सिर्फ हायर मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं वो लिखा हुआ है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर. इसमें होते टोटल 15 क्वेश्चन से आते हैं 5 to 6 ऑफ हायर मैथ्स. इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं टोटल, आते हैं 6 to 7 ऑफ हायर मैथमेटिक्स. गॉट इट? लेट्स गो अहेड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग दोज टॉपिक्स ऑफ हायर मैथमेटिक्स जो फ्रीक्वेंटली पिछले 3-4 साल से पूछे जा रहे हैं. ओके,
कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो नहीं पूछे जा रहे हैं या फिर किसी एक साल में आए पर्टिकुलर, बट रेगुलरली नहीं पूछे गए हैं। ओके, सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मोस्टली आप ये क्लास 12 में एनकाउंटर करोगे। इसके 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बन ही जाते हैं। तो मैट्रिसेस के रूल्स, डिटर्मिनेंट्स के रूल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूजुअली यहाँ पे किसी मैट्रिक्स की या डिटर्मिनेंट की पावर को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को लेकर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, इस पे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड है फंक्शन। फंक्शन के बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ओके, आपको एक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ओके, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ये आना चाहिए। टाइप ऑफ फंक्शंस पता होने चाहिए। ओके, देन वी हैव सेट थ्योरी एंड रिलेशंस। तो सेट थ्योरी से बेसिकली आपका कभी कभी वेन डायग्राम पूछ लेते हैं। ओके, कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं ये पूछ लेते हैं। ओके, सो इस पे कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप अगर इसको पूरा कवर करके जाओ तो बहुत सेफ रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन वी कम टू इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। इसके 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, बेसिकली ये लीनियर इनइक्वालिटीज के अराउंड रहता है। ओके, देन वी हैव परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसके डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं आईपी मैट इंदौर में। एंड इसके क्वेश्चन जनरली इजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं। प्रोबेबिलिटी, सो अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज सॉर्टेड, आप प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली कर लोगे। ओके, इसका भी एक क्वेश्चन रहता है। इंटीग्रेशन, काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर हम इंटीग्रेशन पढ़े या ना पढ़े। देखिए, अगर आप 12th में मैथमेटिक्स आपके पास, आप इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे। बिकॉज कभी कभी या तो इंटीग्रेशन पूछ लेते हैं या तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स पूछ लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ रेयरली आस्क्ड, बिकॉज इंटीग्रेशन में देयर आर सो मेनी रूल्स, राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अभी पिछले 1-2 साल से इंटीग्रेशन नहीं आया, बट लास्ट ईयर इसका एक क्वेश्चन आया था, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर आप पढ़ लेते हो तो यार आप सेफर साइड पे रहते हो। बट अगर इससे क्वेश्चन आ भी गया, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा, यू विल स्टिल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू क्लियर द कट ऑफ थ्रू अदर टॉपिक्स। देन वी हैव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऐसा कुछ आ जाता है, या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। देन वी हैव सीक्वेंस सीरीज, जहाँ पे एपीजीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव स्ट्रेट लाइंस एंड स्लोप। तो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस कैसे बनती हैं, अलग अलग तरीके से उनकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, 2 लाइंस का इंटरसेक्शन, उनसे कोई थर्ड लाइन जा रही हो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन वी हैव कोनिक सेक्शंस। कभी कभी ये आपको इक्वेशन देंगे और पूछेंगे कि एलिप्स की है, पैराबोला की है, सर्कल की है। Those kind of questions can be asked. Okay, then we have quadratic equations. Of course, quadratic equation, उनकी maximum minimum value, उनके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, रूट्स ऑफ quadratic equation से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फंक्शंस। सो यहाँ पे जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं 1 से 2। एंड फाइनली वेक्टर्स। वेक्टर्स वैसे तो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, बट कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आप इसको पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, मे भी बहुत इजी सा क्वेश्चन आ जाए। सो व्हाट वी शुड एग्जैक्टली डू इज, ऐसा नहीं कि हम कंप्लीटली किसी टॉपिक को छोड़ दें। अगर आप उसके बेसिक भी पढ़ के जाते हो, कभी कभी बहुत बेसिक एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। एंड क्योंकि आईपी मैट एक स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम है, इसको हमेशा ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसको नॉन मैथ्स वाले भी इसको क्लियर कर पाए बेसिकली। ओके, इवन इफ दे डू नॉट हैव अ वेरी गुड होल्ड ओवर द क्लास 11-12 मैथमेटिक्स। ओके, सो थिंक लाइक दैट। एंड आप इनको अगर कवर कर लेते हैं, जैसे लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट से काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। फंक्शन से एक बहुत इजी पैटर्न जनरेट वाला क्वेश्चन आया था, अगर आप चेक करोगे 2023 का एग्जाम आपको दिखेगा उसमें। देन आपका, इफ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाइनोमियल से बड़ा इजी सा एक क्वेश्चन आया था। ओके, देन अगर हम जाएं, ट्रिग्नोमेट्री में भी इजी क्वेश्चन आते हैं जनरली, सीक्वेंस सीरीज से इजी क्वेश्चन आते हैं। ओके, एक टॉपिक है लॉगरिथम्स, मैंने उसे हायर मैथमेटिक्स में इंक्लूड नहीं किया है, बट लॉग्स की 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, उनको पढ़ के आप कोई भी लॉग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आईपी मैट में 2 से 3 क्वेश्चन लॉग्स के आते ही आते हैं, लॉगरिथम्स के। ओके, देन कोनिक सेक्शंस पे एक क्वेश्चन, आई थिंक सर्कल की क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन था, वो चेक कर लीजिएगा आप। सो दैट इज व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि आप पास्ट ईयर पेपर्स को एक बार एनालाइज कर लीजिए 2-3 साल के, आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली जब आप पढ़ोगे, कोई टॉपिक आपके सामने आता है, आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे इसमें कितना डीप पढ़ना है। ओके, दैट्स इट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हायर मैथमेटिक्स। Finally, if you are looking for a source which you can approach 24/7 to clear your doubts, okay, then we have iQuanta, IP Mat 2024 and 25 courses. अगर आप 2024 में एग्जाम लिख रहे हैं, you can enroll for the 24 course, and if you are writing in 2025, अगर आप 11th class में हैं, तो you can also enroll for the 2025 courses. All the courses are listed on iQuanta.in/IPMat. Visit this link, okay? So we have live classes on Zoom where we have interaction with the teachers, on the spot doubt clarification. Then we have practice assignments on each and every topic after a class. And then if you have any doubts there, you can take a screenshot, put it in our doubt group, which are 24/7 active.
we'll clear it out in 15 to 30 minutes or even earlier. Fine, so 24/7 doubt clarification is there. Even if you miss a class, there are recordings of all the live classes available, okay, throughout the year. So you can watch any class any number of times even if you miss it, okay. Finally, when you return after boards, we have a 75 days crash course included in this particular course, and we have daily classes at that time of 4 to 5 hours. We have marathons, long marathons of good quality IP MAT questions, okay. So this all is included in the IP MAT course. If you want to enroll, you can visit this website, call us on our numbers provided, okay. So keep preparing and get ready for IP MAT. Thank you so much.